Hi guys. So now the CUET forms are out and all of you are wondering how to go about filling the forms. Even before that, because you are filling the forms, you have to fill the choice of subjects that you fill in. So I want to clear one confusion for paper 2, which is the domain subject. Now for paper 2, we have to decide what subjects you have to write the paper in. For Delhi University, you are supposed to choose the subjects that you have given in your class 12th. However, it does not mean that you cannot choose a graduation subject different from your class 12 subjects. So a student who is a science student with subjects physics, chemistry and maths can choose economic honors at Delhi University, but remember that student has to take the CUET test with physics, chemistry and maths. Same is not true for some courses at BHU, for example. If you want to take up law, the 5-year law program at BHU, you may choose domain subject legal studies even if you have not given a legal studies test in class 12 board exams. So for different universities, you may have to go to that university stream and see what domain subjects you can choose. A detailed analysis of this or a detailed counseling you can book at our centers. It will be a free one-on-one counseling just to help you for CUET. Please call on this number. Now we will take you to a step-by-step form filling session right from going to the cuet.samarth.ac.in website and starting the journey to fill your form. So please watch the video for more details. A quick tip that is there with every column in the form has been highlighted for you. So pay attention and keep watching the video again and again while you are filling up the form for optimum use of the video. Thank you. Do not forget to book your free one-on-one counseling on different universities and different domains on this number. Hello students, so this is a video that is made to help you fill the CUET 2023 form. So how you start is, the form will be filled on this website cuet.samarth.ac.in. AC important है. तो इस वेबसाइट पे हम जाएंगे. The moment you reach on this website, there are two options that you have: sign in or register. पहली बार when you are making an account, you have to register yourself. एक बार आपने register कर दिया तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाएगा. बेसिस दैट यू कैन देन साइन इन फॉर लेटर. तो मैं रजिस्टर करता हूँ खुद को पहले. देर इज अ इंफॉर्मेशन बुलेटिन दैट यू कैन डाउनलोड. इसमें सब कॉलेजेस, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, सब्जेक्ट्स, अबाउट द टेस्ट, वो सब कुछ दिया हुआ है. देर आर इंस्ट्रक्शंस एज वेल. इन इंस्ट्रक्शंस में काम की चीज, आई थिंक पॉइंट नंबर 2 यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में एक आती है, दैट योर फोटोग्राफ हैज टू बी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, अपनी मर्जी, 80% फेस विजिबल विदाउट मास्क एंड अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड. इन चीजों का ध्यान रखिएगा. स्कैन्ड सिग्नेचर भी होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में. फोटोग्राफ का साइज 10 KB टू 200 KB और सिग्नेचर का साइज 4 KB टू 30 KB होना चाहिए. ये हमारे पास तैयार रहना जरूरी है. इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 KB टू 300 KB का, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट 50 KB टू 300 KB का क्लियरली लेजिबल हमारे पास स्कैन रेडी होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेक श्योर यू हैव योर 10th मार्कशीट, 12th एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ एज वेल विथ यू. यू डोंट हैव टू स्कैन देम, पर हाथ में होना चाहिए बिकॉज उसकी डिटेल्स हमें फिल करनी होंगी. देन इज पॉइंट 3, you can fill up to 3 subjects. उसकी फीस 750 है for a general candidate. Up to 7 it is 1500. So if you are going to fill 3 or more than 3 subjects, so you might as well go up to the limit and fill 7 subjects. फीस सेम ही रहेगी. 6 सब्जेक्ट पे रुक के कोई फायदा नहीं है. दूसरी बात, जब भी कोई कॉलेज सब्जेक्ट चूज करेगा, योर बेस्ट सब्जेक्ट्स विल बी चोजन. फॉर एग्जाम्पल, डीयू में लिखा है बीकॉम ऑनर्स में 3 डोमेन सब्जेक्ट लिए जाएंगे और अब मैंने भर दिए 4. तो जो मेरे 3 का बेस्ट 3 का स्कोर होगा उनको कंसिडर किया जाएगा. सो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भरने में कोई लॉस नहीं होगा मेजरली, बट वही है, कम भर के एंड में ना पछताया जाए. दूसरी बात, बीएचयू में इफ यू वांट टू डू लॉ, तो यू कैन टेक लीगल स्टडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास
ट्वेल्थ में लीगल स्टडीज था या नहीं। तो अगर इफ यू दैट स्टूडेंट तो आप वो भी भर सकते हैं एज अ डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो रजिस्टर वाला पेज था उस पे नीचे में आ गया क्लिक हियर टू प्रोसीड दिया हुआ है। ये गलती हर बार हो जाती है। यहाँ चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड। सो इट विल आस्क यू योर बेसिक डिटेल्स। नाम डाला एग्जैक्टली एज द वन जो कि क्लास 10 सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, सिंस माय फादर एंड माय गार्जियन द सेम, तो ये वही हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको मेरे ख्याल से याद होंगी, अपनी तो याद ही होती है, किसी और की हो ना हो, है ना। और फिर ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। चलिए जेंडर, नेशनैलिटी, मोस्टली आई थिंक हमारे केस में इंडियन होगा। आइडेंटिटी टाइप, सो एज यू कैन सी इस लिस्ट में देयर आर मल्टीपल आईडी कार्ड दैट यू कैन यूज। पैन कार्ड यूज कर सकते हो, सम ऑफ यू माइट नॉट हैव अ पैन कार्ड। स्कूल आईडी कार्ड इनवेरिएबली सबके पास होता है, शायद सबके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड ना हो, बैंक पासबुक शायद ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। देयरफॉर लास्ट में अदर लिखा हुआ है, अदर में आधार काउंट हो जाएगा। सो वट एवर यू थिंक जिसका नंबर आपने तैयार रखा है वो आप डाल दीजिए, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, आधार। मैं अपने पैन का नंबर डालूंगा। इस पॉइंट पे आई विल जस्ट स्टॉप फॉर अ सेकेंड। अच्छा, इसके बाद अपना हाउस एड्रेस डालना है, प्रेमाई हाउस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, ये सब की मोस्टली इंडिया आ जाएगी, पिन कोड। अपना एक ईमेल एड्रेस डालेंगे जो चल रहा है, फंक्शनल ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसी ईमेल एड्रेस को दोबारा कंफर्म करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे विदाउट जीरो, दिस इज इंपॉर्टेंट।